Hello, can you hear me, Neelav? Yes, sir. Neelav Rakesh Sharma, yes. I was Yes, late. sir. I was taking some other class, so I was late. We are in 3.2, na? Question number 20. पेज नंबर क्या था? 223. We are in chapter number 3.2, na? Accounting for not-for-profit organizations. Yes or no? Question number 20. Read the sum, Neelav. Yes, sir. The following information provided by the New Youth Club, Delhi, for the first year ended 31st March 2022. Number one, न्यू यूथ क्लब है, ये क्लब है, इसलिए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ईयर एंडिंग क्या दिया? 31 मार्च 2022 दिया है. इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर होगा 2021-2022, है कि नहीं? नेक्स्ट, गो ऑन. donations received for building rupees 25 lakhs. हाँ, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग. सर ये तो नॉर्मल डोनेशन नहीं है. डोनेशन रिसीव्ड स्पेसिफिकली फॉर बिल्डिंग, इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होगा, कैपिटल रिसीट होगा. ठीक है, यू शुड ट्रीट इट एज कैपिटल रिसीट बिकॉज डोनेशन इज स्पेसिफिक. ओके, यू शुड यूज दिस अमाउंट ओनली फॉर बिल्डिंग, इसलिए यू शुड कंसिडर इट एज कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट, Other incomes and receipts were entrance fees, life membership fees, subscription, playground rent, refreshment account, and sundry incomes. these are all the incomes, but they have mentioned capital income, revenue income. Okay, capital income in the sense it goes to balance sheet. Revenue income in the sense it has to go to not profit and loss, income and expenditure. For not for profit organization there will not be P&L account, there will be income and expenditure account. So ये revenue income जो है वो income side जाएगा, income and expenditure account में. ठीक है, actual receipt है. Sir, what is the difference between revenue income and actual receipt? Difference between income and receipt, sorry, not revenue or capital. Capital income, revenue income, differentiation is basically whether it goes to balance sheet or income and expenditure account. Now tell me the difference between income and receipt. Income versus receipt. Anyone online? Anyone? You should understand the question, na? Then only you can draft all these accounts, financial statements. Anyone? Rakesh Sharma, what is the difference here?
This income is actually what you earned. Receipt part is what you actually received. Understanding? Income is nothing but the amount which goes to P&L account, normal case. Here in this case, the amount which goes to income and expenditure account. It is not necessary that all the income will be received in the same year, yes or no? Because you have this concept. What concept? Receivable, income received in advance. Income receivable, income received in advance. So this income amount signifies exact income earned during the year. This is actually received during the year. Understood? Neelav, Rakesh Sharma, Yes, sir. understood? Yes, sir. Ha. Next. Expenditures and actual payments were Hmm. land. Capital expenditure for land was 800 rupees and actual payments were 800 rupees. Hmm. Here you have several expenditures. They are mentioning expenditure payment. Same way, expenditure versus payment. Expenditure is actual expense incurred, payment is actual amount paid during the year. Clear? Huh. Yes. What are the different items? Land. Land is an asset. Books, Books. Books is an asset. furniture, Furniture is an asset. Honorariums and salary. honorarium, This is an expense. Yes or no? maintenance of playground, Maintenance of playground. refreshment account, इनकम में देख लो एक बार प्लेग्राउंड रेंट है. इनकम में देख सकते हैं एक आइटम है प्लेग्राउंड रेंट बोल के, है कि नहीं? yes sir, नीचे मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, दिस इज एन एक्सपेंस. इनडायरेक्टली क्या कर रहा है ये यूथ क्लब जो है, प्लेग्राउंड भी है इसका. प्लेग्राउंड रेंट पे देते हैं, कुछ इनकम आता है. समझ गया? तो रेंट पे देना है तो जो रेंट दे रहा है उसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा. हम मेंटेन करना है ना, डेली क्लीनिंग वगैरह, तो नीचे एक्सपेंस है उसका. नेक्स्ट. insurance premium, नो, रिफ्रेशमेंट अकाउंट है. refreshment account, ऊपर इनकम में रिफ्रेशमेंट भी है, नीचे एक्सपेंडिचर में भी रिफ्रेशमेंट है. इसका मतलब है रिफ्रेशमेंट्स का एक एक्टिविटी है यूथ क्लब में. ठीक है? उसके लिए डोनेशन आते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं. समझ गया ना? एक एक्सपेंडिचर भी है, एक इनकम भी है, ये दोनों रिलेटेड है. नेक्स्ट. insurance premium, इंश्योरेंस प्रीमियम. नेक्स्ट. sundry expenses, सन्ड्री एक्सपेंसेस. दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस एंड एसेट्स. ऊपर में जो है जो लाइबिलिटी और इनकम. सर लाइबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? जो एक कैपिटल इनकम है देख लो 105, लाइफ मेंबरशिप फी. अंडरस्टूड? दिस विल नॉट गो टू income and expenditure account because this is a capital income. It has to go to balance sheet liability side by adding it to the capital fund. Understanding? That's why I am calling it as liability. Understood? Normal membership fees or annual membership fees, that is a revenue income, but life membership fees, that is a capital income. Okay? Capital income goes to balance sheet, revenue income goes to income and expenditure. Next, read the adjustments. donations were utilized to the extent of rupees 30 lakh in construction of building, balance were unutilized. One second. In the first page, how much was the donation received? 25 lakhs, कितना? 20? 25 lakhs, 25 lakhs. ये डोनेशन है, कितना एक्सटेंड यूज कर दिया? 13 lakhs. 13 lakhs, ये बिल्डिंग के लिए. समझ गया?
बैलेंस वॉज अनयूटिलाइज्ड, बैलेंस कितना है? 12 lakhs. 12 lakhs. ओके, हाँ नेक्स्ट. In order to keep in safe, 8% government securities were purchased on 31st December. डोनेशन कब आया था डेट हमको बताया नहीं, लेकिन ये जो 12 lakhs बचा है वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा आइडल रखने से बेटर कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट को. ये एक्चुअली 25 lakhs बिल्डिंग के लिए ही यूज करना है, समझ गया, और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना है. लेकिन बिल्डिंग तो 1 साल में नहीं बनेगा, 2-3 साल लगेगा, है कि नहीं. तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग जो आइडियल कैश है उसको ये जो बैलेंस कैश 12 lakhs है कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, समझ गए. कौन सा इन्वेस्टमेंट है? फर्स्ट 31st दिसंबर है, 31st दिसंबर 2021. 2021 में कितना अमाउंट है गवर्नमेंट 10 सिक्योरिटीज lakh खरीदा है? 8% government securities. हाँ, कितना अमाउंट का है? 10.5 lakhs, मतलब 10,50,000 है. ये क्या यूज किया है? इन्वेस्टमेंट बोल के लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है फॉर द टाइम बीइंग. सर ये एक्चुअली डोनेशन बिल्डिंग के लिए ना, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? परमानेंटली इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग. किसमें? 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. हाँ नेक्स्ट. Remaining amount was put in bank as term deposit on 31st March 2022. 31st March 2022. हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है देखो 21-22 है कि नहीं, 21-22. तो ये 31st मार्च 2022 मतलब लास्ट डे है फाइनेंशियल ईयर का. बैलेंस कितना बचा है? कितना बचा है राकेश शर्मा? So 150. राकेश 1 शर्मा lakh इधर. So 1,50,000. यस, 1,50,000. 1,50,000 जो बचा है 31st मार्च 2022 में किस में डाल दिया? टर्म डिपॉजिट. ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है. टर्म डिपॉजिट, अंडरस्टूड. This is the whole utilization pattern of this building donation received. This is called specific donation. Specific donation, not general donation. If it is a general donation, I will take it to the income and expenditure account as revenue income. But this is a capital income. समझ गया? This is capital income. This is the whole pattern. Okay. इधर तक जो पार्ट है उसको ब्रैकेट दे दो. डोनेशन वेर यूटिलाइज टू द एक्सटेंट, वो जो पैरा है ना उधर से स्टार्ट करो और टिल 31st मार्च 2022 उसको नंबर मतलब नंबर 1 या ये दे दीजिए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है ना. बगल में ये दे दीजिए और डोनेशन का जो 25 lakhs अमाउंट है ना उधर ये दे दीजिए. नीलम अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, वो जो पैरा है, पैरा को ऐसे एरो मार्क दे के बगल में ये दे दीजिए. डोनेशन 25 lakhs जहाँ पे है उधर ये दे दीजिए. नेक्स्ट आगे जाओ. During the year 21-22, subscription received in advance rupees 52,000 for the year 2022 and 23. This is closing received in advance, है कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर का है. नेक्स्ट ईयर का हो तो आज इसी ईयर में रिसीव हुआ, तो करंट ईयर क्लोजिंग में रिसीव्ड इन एडवांस बोल के दिखाना पड़ेगा. तो इसलिए क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस.
तो क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस, बट दिस आइटम इज रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन। ये आइटम को ऐसा ब्रैकेट देके बी दे दीजिए। बी देके इनकम में, जो इनकम्स में देखो सब्सक्रिप्शन आइटम है कि नहीं, है ना, कैपिटल नहीं, रेवेन्यू इनकम में है ना सब्सक्रिप्शन, उधर बी दे दीजिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, Depreciation to be charged on building and furniture at rate 10% and on books at rate 15%. बिल्डिंग पे 10% है। जो फर्स्ट जो डोनेशन है ना 25 लैक्स, उधर उधर 10% लिख देना। ठीक है, और जो ऊपर 13 लैक्स है ना, इधर भी 10% लिख देना। क्वेश्चन में है जहां पे 13 लैक्स लिखा है और जहां पे डोनेशन है इधर, दोनों में 10% लिख दो। फर्नीचर के ऊपर भी 10% है ना, तो एक्सपेंडिचर में देखो थर्ड आइटम फर्नीचर है ना, उधर भी 10% लिख दो। नंबर मतलब सी देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ डिप्रिसिएशन पार्ट ना, सीधा परसेंटेज दे दो, हमको पता चल जाएगा ये डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है बोल के। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स के बगल में 15% लिख दो। क्लियर नीलव? Done, sir. हाँ, अभी हमने एडजस्टमेंट सब मार्क कर दिया ऊपर। अभी व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड, रीड। You are required to prepare the receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheets as on 31st March 2022. देख लीजिए, टोटल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। अभी तक हमने जो सम्स किया था, हमने देखा है रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है रिसीट्स एंड बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए। अभी इस केस में ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया, एक्सपेंस पेमेंट इनकम रिसीट बोल के लिखा है, हमको तीनों फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स सिंपल, रिसीट्स पार्ट पूरा ये जो अमाउंट है सब जाएगा, पेमेंट्स पार्ट जो है सब रिड्यूस हो जाएगा। ये रिसीट साइड है, वो पेमेंट साइड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिंपल है, इनकम ये पार्ट लेना है, एक्सपेंडिचर ये पार्ट लेना है। एसेट्स को बैलेंस शीट में लेके जाओ एसेट साइड, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड लेके जाओ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ गया ना? हाँ। Yes, sir. अभी हम अकाउंट्स ड्राफ्ट करेंगे, अच्छे से देख लेना। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं ये सब नहीं लिख रहा हूं, आप एग्जैक्टली फॉर्मेट देख के लिख दीजिए। फॉर्मेट क्वेश्चन में देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ न्यू यूथ क्लब receipts and payments account for the year ending 31st March 2022, ये सब अच्छे से लिख देना। ठीक है, अभी डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इधर एक्सपेंडिचर, इनकम्स। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, पहले इनकम डेबिट साइड में इनकम ले लेता हूं, नहीं, डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंडिचर ही होना चाहिए, बिकॉज एज पर नॉमिनल अकाउंट प्रिंसिपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसी कॉन्सेप्ट पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, पहले एक्सपेंडिचर लेना है। समझ गया? नेक्स्ट बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, एसेट्स। ठीक है, फर्स्ट आइटम क्या था? डोनेशन रिसीव्ड।
यस और नो? डोनेशन कितना रिसीव हुआ नीला बोलो? Sir, 25 lakhs. 25 lakhs. ये मैं रुपीस इन थाउजेंड्स ले रहा हूं, ठीक है, ऊपर लिख देना क्लियरली रुपीस इन थाउजेंड्स. 25 lakhs होगा तो थाउजेंड्स में कितना होगा? 2500 होगा. मैं सीधा लेके जाके रिसीट्स में डाल दिया अमाउंट पहले, क्योंकि रिसीट है ये, है कि नहीं? तुरंत बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड, स्पेसिफिक डोनेशन ना, ये तो लायबिलिटी होगा. समझ गया? एंट्री में बता देता हूं, दोबारा देख लीजिए. एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट. बिल्डिंग फंड इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड लेके गया, बैंक अकाउंट डेबिट रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डाल दिया, रिसीट साइड डाल दिया मैंने. समझ गया? मैंने रिसीट साइड ले लिया. क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट 13 lakhs बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है. इधर देखो 10,50,000 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया है, 1,50,000 टर्म डिपॉजिट में डाल दिया है. मतलब जो कैश मेरे पास है सब यूज कर लिया है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ. अभी देखो 25 lakhs है, पहले 1300 ना बिल्डिंग के लिए यूज कर दिया, 13 lakhs. नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1050, 10,50,000. बाद में टर्म डिपॉजिट 150. इधर मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये टर्म डिपॉजिट है कि नहीं? इधर तक कोई डाउट है? एंट्री देख लो अच्छे से. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, 3 एसेट्स है. 2 बैंक अकाउंट 2,500, 2,500 आ गया, 2,500 कच्चा हो गया. इधर ठीक है? डिपॉजिट वाला समझ नहीं आया. हाँ. टर्म डिपॉजिट. सॉरी, सर टर्म डिपॉजिट के बारे में क्या बोला सर आपने? वो समझ नहीं आया. टर्म डिपॉजिट एसेट ना, डिपॉजिट है. डिपॉजिट तो एसेट है. एंट्री क्या होता है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक. इसलिए पेमेंट साइड मैंने लिख दिया टू बैंक का. अभी डेबिट इंपैक्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं? नीलम अंडरस्टूड? रिमेनिंग 1,50,000. 1,50,000. हाँ, ये रुपीस इन थाउजेंड्स ना, इसलिए 150 लिखा मैंने. यस सर. अंडरस्टूड ना? यस सर. अभी सर ये जो भी अमाउंट है वो बिल्डिंग का ही, इस पे बिल्डिंग के नाम पे ये सारा हम लोग ने मतलब एक्सपेंस किया है ना? ये बिल्डिंग के नाम पे ही एक्सपेंस किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है ना फॉर द टाइम बीइंग. ये दोनों तो इन्वेस्टमेंट ही है. आप बोलेगा पूरा बिल्डिंग के नाम पे ही मैंने 2,500 क्रेडिट करेगा. हाँ सर. हाँ, नहीं कर सकते क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग ये इन्वेस्टमेंट है ना. नहीं मतलब ये परमानेंट के लिए हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्डिंग फंड का है ना. कौन सा ये अमाउंट? मैं वो नहीं बोल रही, मैं बोल रही कि जो बिल्डिंग फंड का जो 25 लाख है वो हाँ. बिल्डिंग के लिए मतलब एक्सपेंस करना पड़ेगा, अदर्स के लिए नहीं कर सकते. 25 lakhs ये जो है रिसीव हुआ है ना, वो लाइबिलिटी जैसे ट्रीट कर दिया पहले. इधर जो लाइबिलिटी है उसमें ले लिया ना बिल्डिंग फंड बोल के. हाँ सर. हाँ, उसके बाद जो पैसा आया था हमने इन्वेस्ट कर रहा है
एक्चुअली बिल्डिंग के लिए ही यूज करना है, बिल्डिंग में 13 लाख यूज कर दिया, लेकिन बाकी जो अमाउंट बचा था फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्ट किया है, तो बिल्डिंग के नाम पे नहीं दिखाना है, फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे दिखा सकता है ईयर एंडिंग में। बाद में ये जो अमाउंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगा, ये जो टर्म डिपॉजिट है बेच देगा, मतलब टर्म डिपॉजिट विथड्रॉ कर देगा एफडी, ये दोनों अमाउंट को फिर बिल्डिंग में लगा देगा, बिल्डिंग 2500 बन जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 13 लाख रुपीस बिल्डिंग में एक्सपेंस कर दिया, मतलब वो खर्च कर दिया, अगर ये टर्म डिपॉजिट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं होता तो जो बैलेंस जो अमाउंट होता वो हम लोग कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते? अच्छा, अमाउंट अगर नहीं था इसमें तब बोल रहे हैं, वो कैश एंड बैंक, वो क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। अगर खर्चा नहीं करेगा 2500 में सिर्फ 1300 यूज करेगा, हम ये अमाउंट नहीं डालते इधर, तब ऑटोमेटिकली जो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, उसमें रह जाएगा अमाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये तो रिसीट्स एंड पेमेंट में हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा क्योंकि ये तो स्पेसिफिक फंड ना, तो इसलिए ये इधर नहीं लेना है, हम बैलेंस शीट में ले लिया। अगर आप बोल रहे हैं ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, तब आप सीधा 2500 इधर रिसीव करो, इनकम में 2500 ले लो। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, अच्छा डाउट है, क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा, अगर ये अमाउंट जो बचा है कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया तो क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, shall I continue? यस सर। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी इधर तो डिपॉजिट कर दिया, सेकंड एंट्री हो गया ना। हाँ, अभी इसका जो है ये एसेट साइड में ले लो, क्योंकि ये तो बिल्डिंग बन गया ना, 13 लाख का बिल्डिंग बन गया, 13 लाख है। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन कितना है बोलो? हाँ, 10% है, तो 13 लाख पे 10% कितना होगा? 130 होगा। तो नेट अमाउंट देख कितना है, देखो 13 लाख 130 माइनस करो, कितना हो रहा है? 1170। ठीक है ना, बिल्डिंग का मैंने डिप्रिसिएशन भी एक साथ में ले लिया है। अभी ये डिप्रिसिएशन फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन बिल्डिंग कितना था? 130। ठीक है, फिर बिल्डिंग पार्ट हो गया। अभी 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना था? 1050 ना। हाँ सर। हाँ, 1050। ठीक है, 1050 दे दिया। फिर टर्म डिपॉजिट कितना था? 150। ठीक है, सेकंड जो एंट्री है जो यूज कर दिया, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट साइड मैंने इधर इंपैक्ट दे दिया। अभी डेबिट साइड क्या था? एसेट पोर्शन है, एसेट्स में मैंने ले लिया 1300, 1050, 150। ठीक है, टोटल मिला के 2500 होगा। अभी बिल्डिंग के लिए डिप्रिसिएशन 10% बोल के हमने बगल में लिखा है एडजस्टमेंट, उसका मैंने एडजस्टमेंट इधर दे दिया 130, करस्पॉन्डिंग इधर दे दिया डिप्रिसिएशन। सर एंट्री क्या था? डिप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग बैलेंस कम होगा तो इधर क्रेडिट किया मैंने। डेबिट क्या होगा सर? डिप्रिसिएशन, नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल एक्सपेंस साइड जाएगा, लेकिन इधर तो एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड जा रहा है। क्लियर टिल नाउ? क्लियर? एनी डाउट्स टिल नाउ? नीलव, राखी शर्मा, एनीवन? नो सर। हाँ, डेबिट क्रेडिट अबिट हो गया ना।
दूसरा इधर देख लेना, ये कब रिसीव हुआ हमको डेट बोला नहीं है, बिल्डिंग कब बन गया ये हमको डेटा बोला नहीं है, तो इसलिए हमने 10% पूरा 13 लाख पे ले लिया, पूरा साल का डिप्रिसिएशन ले लिया। ठीक है, 13 लाख इंटू 10% इंटू अगर बिल्डिंग बन गया 3 महीने के बाद, तब हम डिप्रिसिएशन लेते हैं 9 मंथ्स के लिए। डेट बोला नहीं इसलिए 10% ले लिया। अब इधर आ जाओ, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, डेट दे दिया, डेट कब है 31 दिसंबर 2021। इधर से ईयर एंडिंग के लिए और कितना महीना बाकी है, 3 मंथ्स बाकी है, तो जो 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट अक्रू होगा, 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट अक्रू होगा, कितना है देखो 10,50,000 इंटू 8%, 8/100 इंटू 3/12, कितना है देखो, अमाउंट बोलो मुझे। सर हाँ? 21,000। नहीं, अच्छे से कैलकुलेट करो, 21,000 आएगा। $21,000 ना, हाँ। Yes, sir. इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट। हाँ, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, दिस इज एन एसेट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझ गए, ये जो इंटरेस्ट डेबिट जो है वो एसेट है, एसेट सेट जाएगा। इधर देखो, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है 21,000 ना, तो 21 होगा क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड्स। ये तो डेबिट पार्ट हो गया, अभी क्रेडिट पार्ट इनकम में जाएगा, तो इनकम होने से इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 21,000। ठीक है, Yes, sir. अंडरस्टूड। अभी टर्म डिपॉजिट देख लेंगे। सर टर्म डिपॉजिट कब किया है 31 मार्च में। 31 मार्च में कुछ एंट्री अक्रू होगा क्या, नहीं, कुछ टाइम पीरियड नहीं है, तो इसके लिए इसमें और ऊपर से परसेंटेज भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इसको इग्नोर करना है। और अक्रू भी नहीं होगा, 1 डे के लिए क्या होगा, ये इग्नोर करो। इसका तो नहीं दिया इसलिए पूरा ले लिया, समझ गए, पूरा खत्म हो गया। पूरा इसका बिल्डिंग फंड का मैंने पूरा ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, हाँ। अभी नेक्स्ट आइटम देखो, एंट्रेंस फीस। ये देखो एंट्रेंस फीस कितना था 251 है सर, रेवेन्यू इनकम 251 है, मतलब इनकम साइड में इतना आएगा। एक्चुअल अर्न किया 251 है, रिसीव कितना किया था 251 नहीं है, अर्न किया 251, रिसीव किया 251, रिसीवेबल कुछ नहीं है। ओह सॉरी, नहीं ऊपर भी थाउजेंड्स में ही है, रुपीज इन थाउजेंड्स दिया क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर ना। एंट्री क्या होगा देख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए रिसीट साइड, एंट्रेंस फीस क्रेडिट। एंट्रेंस फीस इज एन इनकम अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट P&L में जाएगा, तो इसलिए इनकम में जा रहा है। क्लियर।
नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी 105। सर ये तो कैपिटल इनकम है, इसलिए जो कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड बैलेंस इधर ले लो, इसको ऐड कर लो, लाइफ मेंबरशिप फी कितना है 105। ठीक है, कैपिटल फंड बैलेंस हमको दिया नहीं है अभी तक, तो देख लेंगे, अगर आएगा तो डाल देंगे। कैपिटल फंड, sir, why you have taken it to liability side? Because they have mentioned it as capital income in the question. समझ गए? अगर कैपिटल इनकम मेंशन नहीं करेगा तब मैं कहा लेके जाऊंगा, इधर रेवेन्यू इनकम में लेके जाऊंगा। ठीक है, एक्चुअल रिसीट कितना हुआ था 105, तो कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, अभी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है ना बी, सब्सक्रिप्शन का देख लो। सब्सक्रिप्शन इनकम कितना बोला है, मतलब रिसीव्ड कितना था, रिसीव्ड, रिसीट इज 1151। ठीक है, रिसीट इज 1151, इनकम दिया है, इनकम इज 1160। ठीक है, एडजस्टमेंट में बोला है क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस वो इसमें इंक्लूड होगा, उसको लेस करना पड़ेगा। क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस कितना था 52 ना, 52,000 ना, हाँ, तो ये 52 होगा, थाउजेंड्स में है ना, इसलिए 52। 1151 माइनस 1152 कितना होगा 1099 होना चाहिए। एक्चुअली ये अमाउंट जाना चाहिए इनकम में, लेकिन इतना गया है, मतलब इनकम मतलब P&L अकाउंट में इतना गया है, एक्चुअली इतना जाना चाहिए। इसका मतलब है ये रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग रिसीवेबल। This is income earned but not received. This is income not earned during the year but received. इसलिए क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस में बोल रहा हूं, इसलिए इसको क्लोजिंग रिसीवेबल में बोल रहा हूं। अभी बैलेंसिंग फिगर कितना है बोलो, 1160 माइनस 1099 कितना है, नीलव कितना है बोल, कितना है नीलव? So 61. हाँ 61। This 61 is nothing but closing receivable. समझ गया? This is an important working note. ठीक है, अभी अच्छा से एडजस्टमेंट्स देख लेना। इनकम में कितना जाएगा 1160 जाएगा, सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड कितना है 1151। ठीक है, 1160 इनकम है, एक्चुअल रिसीव्ड 1151 है। अभी क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है 52, दिस इज लाइबिलिटी। क्लोजिंग रिसीवेबल है 61, दिस इज एन एसेट। सो एसेट साइड जाओ, लाइबिलिटी साइड ये देख लेना। एसेट साइड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है रिसीवेबल
61 ना. Liability side, subscription received in advance. कितना है? 52. अंडरस्टूड? इम्पैक्ट समझ गया? ये अमाउंट कहाँ कहाँ पे जा रहा है देख लीजिए अच्छे से. सब्सक्रिप्शंस का हो गया. प्लेग्राउंड रेंट, प्लेग्राउंड रेंट एक्चुअल इनकम कितना था? 120. प्लेग्राउंड रेंट, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कितना रिसीव हुआ? 110 है कि नहीं? 120 इनकम अक्रू हुआ है लेकिन 110 ही रिसीव हुआ है. बाकी 10 क्या होगा? रिसीवेबल होगा. अंडरस्टूड? 120 इनकम है, रेंटल इनकम. रिसीव हुआ है सिर्फ 110, तो 10 रुपीज क्लोजिंग रिसीवेबल. समझ गया? क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस शीट में देखो, प्लेग्राउंड रेंट रिसीवेबल कितना है? 10. समझ गया? नेक्स्ट, रिफ्रेशमेंट अकाउंट 115. रिफ्रेशमेंट अकाउंट 115 रिसीव हुआ है. एक्चुअली रिसीव हुआ 115, ठीक है. सन्ड्री इनकम 62 है. रिसीव हुआ कितना है? 49. बैलेंस अमाउंट इज रिसीवेबल. बैलेंस कितना था देखो? 62 माइनस 49, 13. 13. 13 is receivable. Sundry income receivable. Sundry income receivable 13. Clear? This is all about incomes. अभी expenses में जा रहा है. Land कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा है कि नहीं? इधर देखो, लैंड 800 पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट. इसका इम्पैक्ट, अभी लैंड एसेट है, लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होगा, ठीक है. सीधा 800 इधर ले लो, एसेट. समझ गया? 800 दोनों इम्पैक्ट मैंने दे दिया. लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं है. नेक्स्ट, बुक्स. बुक्स इधर ले रहा हूं. हाँ, बुक्स का कितना अमाउंट है? 236. डिप्रिसिएशन कितना रेट है? 15%. हाँ, 236 मतलब क्या था? 2,36,000. 2,36,000 इंटू 15% कितना है देखो? कितना है राकेश शर्मा? 35,400. 35,400 ना? Yes sir. मतलब 35.40 माइनस करो. 35.40 माइनस करो 236 से. 36 minus 236 माइनस 35.40, 200
200.60 होगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, 200.60 करस्पॉन्डिंग डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे देना। ये डिप्रिसिएशन बुक्स, ये तो बिल्डिंग का है, ठीक है ना। बुक्स का कितना बोला है? 35.40, ठीक है। बुक्स का अमाउंट मैंने इधर डाल दी, बुक्स का इधर भी डालना पड़ेगा। बुक्स एक्सपेंडिचर ना, पेमेंट साइड 236, ठीक है। पेमेंट साइड 236, टू बैंक अकाउंट का इफेक्ट क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का मैंने एसेट में ले लिया 236 का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितना किया दे बोल रहे? हाँ, एक्चुअल पेमेंट कितना किया? 202। इस इधर 236 नहीं लिखना है, इरेजर का है। एक्चुअल पेमेंट तो कितना हुआ? 202 हुआ है, ठीक है। सर बाकी क्या था? 236 से 202 ही पेमेंट किया है, बाकी इज आउटस्टैंडिंग, है कि नहीं? 236 माइनस 202 इज आउटस्टैंडिंग। लाइबिलिटी साइड जाओ, आउटस्टैंडिंग फॉर बुक्स, नथिंग बट क्रेडिटर्स है ये, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर बुक्स। 236 वर्थ ऑफ बुक्स दे दिया, लेकिन मैंने पेमेंट किया 202, इसका मतलब है क्रेडिटर को और पेमेंट करना है, समझ गया? कितना था? 36 माइनस 2 34 होगा ना, है कि नहीं? समझ गया? डिप्रिसिएशन मैंने ले लिया, उधर वो बुक्स का अमाउंट ले लिया, इधर एक्चुअल पेमेंट ले लिया, बुक्स का खत्म हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर कितना का खरीदा है? कितना? 345। डिप्रिसिएशन रेट कितना था? 10%। 10%, मतलब 34.5। 34.5 डिप्रिसिएशन रिड्यूस करने से कितना आएगा नेट अमाउंट? 310.51 आएगा, ठीक है। 310.50, सॉरी, ठीक है, 310.50 आएगा। इसका करस्पॉन्डिंग डिप्रिसिएशन इधर ले लो, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डिप्रिसिएशन फर्नीचर कितना था? 34.5, ठीक है। लेकिन फर्नीचर का एक्चुअल पेमेंट कितना किया था? 315, बैलेंस 30 क्रेडिटर होगा, है कि नहीं? तो लाइबिलिटी साइड जाओ, आउटस्टैंडिंग फॉर फर्नीचर क्रेडिटर कितना था? 30। आप लिख लीजिए सर 30 कैसे आया था? 345 माइनस 315, 30। 345 माइनस 315 30। पहले का भी 236 माइनस 202 34 आया था, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है। क्या था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो? हॉनरोरियम्स एंड सैलरीज एक्सपेंडिचर कितना है? 165। हॉनरोरियम्स एंड सैलरीज, ठीक है।
लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितना किया था? 131। बैलेंस क्या था? आउटस्टैंडिंग है कि नहीं? हॉनरेरियम एंड सैलरीज का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक्सपेंडिचर एक्चुअल इनकर हुआ 165 लेकिन पेमेंट किया 131। बैलेंस कितना होगा देखो? आउटस्टैंडिंग हॉनरेरियम एंड सैलरीज कितना है? 165 माइनस 131 कितना था? 34 होगा। 34। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड एक्सपेंडिचर है। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड कितना था? मेंटेनेंस एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर हुआ 52 लेकिन एक्चुअली पेमेंट किया है कितना? 50। तो 2 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग प्लेग्राउंड मेंटेनेंस कितना था? 2। स्टेप बाय स्टेप समझ रहे ना? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रिफ्रेशमेंट अकाउंट। इधर देखो, रिफ्रेशमेंट कितना था? 79। एक्चुअल पेमेंट भी किया 79। ठीक है। इधर रिफ्रेशमेंट इनकम है, इधर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है, दोनों। आप नेट अमाउंट प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट बोल के क्रेडिट साइड ले सकते हैं। दोनों सेम अमाउंट है ना? रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट इनकम एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट बोल के 115 माइनस 79 ले सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। ठीक है ना? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर 79 है, पेड भी 79 है, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर कितना है? 12। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना है? 15। सर इंकर हुआ 12 है लेकिन पे किया 15 है, इस केस में क्या होगा? एक्सेस पेमेंट किया है, इसको क्या बोलते हैं राकेश शर्मा? सर ये एसेट्स में नहीं आएगा शायद, जो Assets? 3000। क्या क्या? सर 3000 का कहीं पे तो दिखाना पड़ेगा सर। 3000 कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस। 12 ही एक्चुअली करंट ईयर के एक्सपेंस है लेकिन मैंने 15 पे किया है। 15 पे किया मतलब ओपनिंग का कुछ नहीं है, तो इनडायरेक्टली क्या था? नेक्स्ट ईयर का भी अभी पेमेंट कर दिया। समझ रहे? दिस इज व्हाट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का एंट्री क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। समझ गया? इंश्योरेंस जो पेमेंट किया 15 माइनस 3 12 एक्चुअल एक्सपेंस P&L में जाएगा। जो 3 है प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होगा, वो एसेट साइड जाएगा। अंडरस्टूड राकेश शर्मा? एनी डाउट? नो सर। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 3। नेक्स्ट, मैंने इधर 12 ले लिया ना, इधर 12 इधर 15 ले लिया, उधर 3 ले लिया, हो गया ना? नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस।
इधर ले लो सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना था 70 एक्सपेंडिचर है, लेकिन मैंने एक्चुअली कितना पेमेंट किया 65 65, 5 क्या होगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना था 5। ऑल द आइटम्स आर डन, यस और नो। अभी पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जाओ, बैलेंस करो इसको। बैलेंस किस तरफ आ रहा है बताओ फास्ट। $2,500 plus 251 plus 105 plus 1151 plus 110 plus 115 है कि नहीं, प्लस 49, 4281 ना, 4281 आ रहा है मुझे, 4281। अभी माइनस करो, माइनस 1300 माइनस 1050 माइनस 150 माइनस 800 माइनस 202 माइनस 315 माइनस 131 माइनस 50 माइनस 79 माइनस 15 माइनस 65। बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इज 124 आ रहा है मुझे, बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। 124 आया था मुझे बैलेंस, ये बैलेंस तुरंत लेके जाना एसेट साइड ले लेना, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था 124। राकेश शर्मा आया था कि नहीं, हाँ 124 आया था ना, हाँ। अब इधर देख लो इनकम कितना था, एक्सपेंडिचर कितना है देखो 121 प्लस 251 प्लस 1160 प्लस 120 प्लस 115 प्लस 62, कितना आया था मुझे 1729 आया था, ठीक है। अभी इधर माइनस करो, माइनस 165 माइनस 52 माइनस 79 माइनस 12 माइनस 70 माइनस 130 माइनस 35.4 माइनस 34.5, 1151.10, this is the profit। प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसको सरप्लस बोलना पड़ेगा, और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऐसा भी लिख सकते। प्रॉफिट तो नहीं लिखना है क्योंकि दिस इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना, सरप्लस लिखना है या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखना है। ये 1150 1729 मुझे बैलेंस आया था, आपके बुक में रिफ्रेशमेंट इधर से इधर माइनस करके इधर दे दिया, इसलिए आपका बुक में बैलेंसिंग अलग अमाउंट आया था, लेकिन प्रॉफिट मैच हो जाएगा। 1151.10 इसको लेके जाइए कैपिटल फंड में ऐड कीजिए, कितना था ऐड सरप्लस कितना है 1151.10 प्लस 105
कितना होगा 1256.10 होगा. एसेट सेट बैलेंस करो, एसेट सेट टोटल करो +5 2500 +5 +52 +34 +30 +34 +2 3913.10 एग्जैक्टली आया था 3913.10. सिमिलरली इधर इस साइड भी बैलेंस करो एग्जैक्टली 3913.10 आएगा. $800 1170 $200.6 $1050 $150 $310.50 +61 +10 +21 +13 +3 +124 एग्जैक्टली आया था मुझे 3913.10. बैलेंस हुआ है कि नहीं राकेश शर्मा देखो. सर हो रहा है. हो गया ना. हाँ सर. हाँ. सो बैलेंस शीट टैली हो गया. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट 3.2 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बाकी सम्स होमवर्क में ले लीजिए, बाकी सम्स ट्राई कीजिए. अगर किसी में कुछ इश्यू हो रहा है मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. कल 3.3 स्टार्ट करेगा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. ठीक है. ओके सर. हाँ. थैंक यू. थैंक यू सर.